Good morning, students. In today's lecture, we will see that how we can represent a quantum mechanical state. यानी quantum mechanical state को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि कोई भी ऑर्डिनरी स्टेट या जिसको कहें हम क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई भी फिजिकल स्टेट, उसको यूक्लिडियन स्पेस में एक्सप्रेस किया जाता है और इट इज डिनोटेड बाय एनी आर्बिट्रेरी वेक्टर like this. This is the case of ordinary three-dimensional space. So in a three-dimensional space, any physical state is denoted by this arbitrary vector A, and this is in terms of unit vectors I, J and K, and these coefficients Ax, Ay, Az, what are these? These are the set of coordinates. Ax, Ay, Az are the set of coordinates. Now similarly a quantum mechanical state किस में होगी? हिल्बर्ट स्टेट स्पेस में. जिस तरह से क्लासिकल स्टेट होती है यूक्लिडियन स्पेस में, उसी तरह से क्वांटम मैकेनिकल स्टेट किस में होती है? दिस इज रिप्रेजेंटेड इन हिल्बर्ट स्पेस एंड इट इज डिनोटेड बाय ए cat vector. And as you know, it is represented as linear combination of all the basis states which are possible in that representation. तो हम मान लेते हैं कि there are n discrete basis states which are represented as u1, u2, u3 and un. Okay. Like in case of electron spin, we saw that there are only two discrete basis states, state up या cat up and cat down. Now in general we are considering the case that there are n discrete basis states are possible. So these are represented as u1, u2, un. Now the quantum mechanical state in Hilbert space will be represented as like this, their linear combination. So cat A is equal to a1 u1 plus a2 u2 plus a3 u3 and so on. In the end we write a n un, where these are the cat ui's. These all basis states are a complete set of n orthonormal states. And what are these? A1, A2, An. These are, as we know, these are the probability amplitudes or expansion coefficients. Now what we see, जब हम इन दोनों को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो यूनिट वेक्टर्स थे ऑर्डिनरी थ्री डायमेंशनल स्पेस में, उन यूनिट वेक्टर्स को किसने रिप्लेस कर दिया क्वांटम मैकेनिकल स्पेस में? यूनिट वेक्टर्स ने, u1, u2 एंड un इनने रिप्रेजेंट कर दिया. और जो कोऑर्डिनेट्स थे ax, ay, az, दीज आर रिप्लेस्ड बाय द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स a1, a2, an. सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट quantum mechanical state by a cat vector. Now we are saying that these cat ui's, all the basis states are orthonormal. This is set of orthonormal state. And what does orthonormality means? Bra cat ui uj is equal to del ij. This del ij is Kronecker delta, means when I and j are same, in that case this will be equal to 1, and when I and j are different, then its value will be 0.
So these are orthonormal states. Like you know psi I star, psi j, d tau. This is equal to 1 when I is equal to j, and this is equal to 0 if I not equal to j. And this is property of Kronecker delta, del ij. So such states are called the orthonormal states, and in bracket notation these are written like this, ui uj. हमने इसको इस तरह लिखा है. Now the probability amplitude, which is denoted by phi, probability and amplitude is denoted by phi, that this state A will be found in basis state u1. This will be given by phi 1. इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम phi 1 से, एंड दिस विल बी इक्वल टू u1 a. यानी ये स्टेट A, जो हम स्टेट A ले रहे हैं, जिसको कैट वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं A से, ये बेसिस u1 में मिलेगी. इसका प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड क्या होगा? u1 a. इसी तरह से ये स्टेट A बेसिस u2 में होगी, उसके लिए प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड क्या होगा? उसको हम phi 2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं. दैट विल बी u2 a एंड सो ऑन. तो दिस स्टेट विल बी इन nth बेसिस, यानी un. दिस विल बी phi n. इन जनरल ये हो जाएगा phi n इज इक्वल टू un a. So if we take ith state, I can be 1, 2, 3, 4 up to n. A value of I can be 1 to n. So in general for ith state, this probability amplitude will be ui a, और ये क्या हो जाएगा? phi I. तो एक जनरल जो फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया? phi I probability amplitude that this state I will be in basis ui will be given by phi I and written as ui a. Now we close this equation by ui. ui से अगर हम इसको क्लोज कर दें तो देखो क्या आएगा? ui a is equal to a1 ui u1 plus a2 ui u2. Okay, then it will go on like this. Then ai, this is for ith state, ui ui, then आगे की स्टेट्स आएंगी और लास्ट में nth आ जाएगी, an ui un. अब हमें पता है these all basis states are orthonormal. तो orthonormal है, this means this will be equal to 0. This will again be equal to 0 because ये दोनों इंडेक्स मैच नहीं कर रहे हैं. फिर हम इस पे आए, ये दोनों इंडेक्स सेम है, तो this will be equal to 1 and this will again be equal to 0. तो इसमें से केवल ये सरवाइव करेगा, तो ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर केवल क्या रह जाएगा? दिस कोफिशिएंट ai विल रिमेन. सो ui a विल बी इक्वल टू ai. So we see that this ui a, that this any arbitrary state a will be found in basis ui. इसका प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड किसके बराबर होगा? ai के बराबर, क्योंकि यहां पर केवल ai सर्वाइव करता है ना. एंड दिस विल बी रिटर्न एज ए सिंबल phi I. तो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड phi I विल बी इक्वल टू ai. सिमिलरली इसी से हम इसको
आगे बढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं कि आई अगर 1 के बराबर हो, अगर हम 1 लें यानी स्टेट बेसिस स्टेट U1 के लिए, तो AU1 विल बी इक्वल टू A1। आई की जगह हमने 1 रखा तो U1A विल बी इक्वल टू A1 एंड एम्पलीट्यूड विल बी phi1। इसी तरह से स्टेट A बेसिस U2 में पाई जाएगी, इसका प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड क्या होगा A2 एंड सो ऑन। तो इन रिजल्ट्स को हम अगर इक्वेशन 1 में रखें तो U1A इसकी जगह क्या रख सकते हैं हम A1, या A1 की जगह हम रखेंगे U1A, A2 की जगह रखेंगे U2A। तो देखो हम इसमें रख सकते हैं A1 की जगह U1A, A2 की जगह U2A और AN की जगह UNA। तो ये सब हम यहां पर पुट कर देते हैं। तो देखो ये आ जाएगा A इज इक्वल टू U1A U1, फिर A2 की जगह U2A और U2 पहले से ही है, इसी तरह से UNA UN। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। अब इसको हम क्या करें, एक साथ इसको समेशन लिख के इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, कैट A इज इक्वल टू सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n UI UIA, है ना। I की जगह 1 लिखेंगे तो U1 U1A आएगा पहली टर्म, I की जगह 2 लिखेंगे तो U2 U2A दूसरी टर्म, इसी तरह से n तक हम इसको अगर सम करेंगे तो ये सारी टर्म्स आ जाएंगी। तो इसको हम इस तरह से सम अप करके एक साथ शॉर्ट में लिख सकते हैं। अब इसमें भी अगर हम ये, क्योंकि बेसिस स्टेट्स हैं, इनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं UI से, तो बेसिस स्टेट एक तरह से इस इंडेक्स I से रिप्रेजेंट की जा रही है ना। तो ये जो बेसिस स्टेट है UI, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो दिस इज बेसिस स्टेट्स I, ठीक है। तो इसको हम मान लो इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर दें, तो ये क्या आ जाएगा, क्वांटम मैकेनिकल स्टेट दिस A इज इक्वल टू सिग्मा I, UI की जगह हमने क्या लिख दिया है I, और फिर UI की जगह IA, ठीक है। तो और ये समेशन कहाँ है, 1 से n तक के लिए है फॉर कंप्लीट सेट ऑफ बेसिस स्टेट। अगर तीन बेसिस स्टेट हैं तो I इज इक्वल टू 1 to 3 होगा, और 2 ही स्टेट हैं तो I इज इक्वल टू 1 to 2 होगा। तो जितनी बेसिस स्टेट्स होंगी ये समेशन उतना ही होगा, ठीक है। और अगर n बेसिस स्टेट्स हैं तो I विल बी इक्वल टू 1 to n। तो दिस इज हाउ ए क्वांटम मैकेनिकल स्टेट इज रिप्रेजेंटेड। तो ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि हाउ ए क्वांटम मैकेनिकल स्टेट इज रिप्रेजेंटेड, यानी क्वांटम रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल स्टेट। तो उसमें हमको ये डिराइव करना है। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।